Okay, we are live. Hi, guys, everyone. It's good to see you all again on a Sunday evening. आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। मेरा नाम स्नेहल है और मुझे पिछले 24 ईयर्स से टाइप 1 डायबिटीज़ है। And today we'll be continuing our series on living with type 1 diabetes across the globe. And today we have a friend from our neighboring country, Pakistan. And we'll chit chat with her, get to know her. I'll introduce Shobia, and uh, we'll talk to her a lot on how she manages type 1 diabetes living in Pakistan, and how's the condition over there, and वहाँ पे कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं, वो खुद कैसे मैनेज करती है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस नो वेयर यू आर वाचिंग अस फ्रॉम एंड हाउज योर वीकेंड बीन लाइक, आप क्या कर रहे हैं वीकेंड पे। And if you have any other questions, do put up in the comments and we'll take them up as we go. So just waiting for a couple of more seconds for some people to join in, and we will jump right into the session. So I met Shobia, I think in 2024, in one of the conferences in Singapore, and we could relate immediately because obviously the food, the culture, the customs are so common in India and Pakistan, and हमारे प्रॉब्लम्स इश्यूज भी काफी मिलते जुलते हैं, so we connected immediately and we were able to talk a lot. So yes, we will talk more on how she is managing the condition. Shobia, would you like to introduce yourself? Yeah, thank you so much, Nehal, for introducing me first. My name is Sobia and I'm from Pakistan. Uh, I have been living with diabetes for about 15 years now, uh, and I was diagnosed when I was 17, the golden era of a teenager. Yeah. So uh, this time was, yeah, very hard for me, but I managed to survive so far. Okay. And so now we know you do a lot of work, आप बहुत काम करते हैं, and you help a lot of people living with diabetes, all types of diabetes. So but before we even go to that, I would want to know you more, and आपके बारे में हम जानना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आप क्या काम करते हो, एंड कौन सी इंसुलिन लेते हो, पेन यूज़ करते हैं, या सिरिंज है या इंसुलिन पंप है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ जरूर recently I have joined I think you know about Meethi Zindagi here, uh, the organization working for type 1 diabetes in Pakistan. I have joined them as their community manager. I'm working with them. uh, बट उसके साथ वॉलंटियर वर्क मेरा चल रहा है, वो भी टाइप 1 डायबिटीज के लिए ही है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. So this is the one thing I'm doing. So yeah, life being sometimes more hectic even on weekends. On the other hand, yeah, I'm using hair pens because most of the people पाकिस्तान में ज्यादातर जो लोग हैं वो पेन ही इंसुलिन पेन यूज कर रहे हैं. Uh, हम्म। जब हम डायग्नोज हुए थे फर्स्ट, तो यू नो कि यहाँ पे मिक्स स्टार्ट ही हुआ करती थी, विच वाज 70/30, एंड सबको ज्यादातर वही रिकमेंड कर दी जाती थी. सो फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स आई यूज द सेम इंसुलिन, विच इज बिल्कुल भी टाइप 1 के लिए वो नहीं है. बट मैंने भी उस पे ही काफी टाइम पे सरवाइव किया बिफोर आई वाज स्विच टू पेन्स. And I'm using Novorapid and Levemir for 5 years now. Yeah, but yeah, many people still are using the vials and with syringe here. But yeah, now most of the people are now use कर रहे हैं कि अब हम लोग पेन यूज करते हैं. अच्छा, ओके। एंड सेंसर, आप सेंसर यूज़ करते हैं? Yeah, occasionally. Not on the regular basis because you know कि सेंसर की यहाँ पे जो prices हैं वो extremely high हैं. मतलब one can afford, but using a bulk amount from their monthly household, it is difficult for them to manage it on their daily basis. So yes, most of the people can use, or yeah, more than 50% can't use it on regular basis. So
for me too. I use it on and off, not regularly. Okay. Okay. एंड व्हेन यू आर यूजिंग द ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्स एंड द ग्लूकोमीटर, तो आप दिन में कितने बार चेक करते हैं? I usually check about minimum 3 times, but it depends on my symptoms. कि अगर symptoms हो रहे हैं तो 4 or 5 times a day we can check, but minimum 3 is the compulsion. ओके। ओके। और जब आपका डायग्नोसिस हुआ था तब का अगर आप हमें स्टोरी बता पाएंगे, हाउ डिड यू फील, बिकॉज यू वर डायग्नोस्ड इन अ टीनेज ईयर, वो Yeah. भी थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, एंड हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स रिएक्ट टू योर डायग्नोसिस? So yeah, that time was very hard for me because जब मैं diagnosed हुई थी, my father was already passed away 1 year ago, so it was already a hard time for me. So when I was diagnosed, मुझे कोई DK नहीं हुआ था. Like most of the people went into DKA or something. I was suffering with some other infections or some other health conditions. तो एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया, मतलब ये टेस्ट दिए. और व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड, तो मैं बताऊं तो दैट द फनी थिंग, मैं अपने घर पे थी और मैं क्रीम चाट खा रही थी, द फिक्स मिक्स फ्रूट्स विद क्रीम विद लॉट्स ऑफ शुगर इन इट, एंड आई वाज ईटिंग इट जब मुझे पास रिपोर्ट आई थी जिस पे था कि हाई ब्लड शुगर, हाई HbA1c, एंड I was totally devastated, but still I managed to end my cream chart first. And फूड इज move इम्पोर्टेंट. forward. Yeah, food is important. Yeah, so at that time I was diagnosed. वो शाम का टाइम था तो हम फिर सुबह गए, loads of test और undergone loads of test or things or trauma. So that was time, but it doesn't mean there were no symptoms because there is a lot of we don't have much awareness about the symptoms था. तो symptoms मुझे 3-4 years पहले से ही थे, but we didn't notice because in our mind we think ये सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी है, हमें तो नहीं हो सकती, स्पेशली मुझे तो नहीं होनी चाहिए थी. तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि डायबिटीज है, सिम्टम्स पे कभी नोटिस ही नहीं किया था. So I was so skinny, constant urination, these are other things, but उस पर वैसा ध्यान नहीं दिया. I was skinny, but I always brag कि मैं इतना खाती हूँ फिर भी मैं स्किनी हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरी बॉडी देखो चेंज नहीं हो रही. But one of my teacher always correct me, no, you are underweight. And I was नहीं, I am just totally naturally blessed. So yeah, that was that time. But when I diagnosed, so everything was changed. My family was very supportive. Uh, of course, my sisters, my brother, my mother, they were very supportive. But unlike, के फैमिली में पता था, हम बाहर नहीं बता सकते थे that I have diabetes. तो ये सिचुएशन थी, but I'm blessed कि I have a very supportive family with me. दैट्स गुड टू नो. फैमिली का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब डायग्नोसिस होता है तभी. सो अभी हाउ डज योर डे लुक्स लाइक, लाइक आप पूरे दिन भर में कैसे क्या क्या काम करते हैं, हाउ डू यू मैनेज योर ब्लड शुगर्स थ्रू आउट द डे? Okay, so my day is following a routine. बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन पे थी, मतलब फर्स्ट जब स्टार्ट हुई थी डायबिटीज तब तो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई थी. 70/30 पे थी, उस पे तो डॉक्टर ने कहा होता 30 मिनट्स पहले लगानी है ना. तो फर्स्ट 2 years तो बहुत ही मेरे स्ट्रिक्ट रहे. मतलब मेरे अपने ही, क्योंकि मेरी वो एज थी कि मैं खुद मैनेज कर सकती थी, तो मेरा होता था 30 मिनट्स होंगे, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा, मैं तब पूरा खाऊंगी या ये करूंगी. बट के बहुत ही इश्यूज होते थे जब वो इस्तेमाल कर रही थी 70/30 मिनट्स का गैप होना, तो बहुत ही मुश्किल था जब आप किसी वेडिंग्स पे जाते हो, किसी फंक्शंस पे, पार्टीज पे जाते हो, और स्पेशली अगर आप डाइन आउट के लिए जाते हो तो तब तो बहुत ही मुश्किल होता था. अगर तो घर से लगा के जाओ तो वहां जाके लो हो चुकी होती थी, और वहां जाके लगाओ तो पता नहीं होता था खाना कब आना और कब हमने लगानी है.
तो ऐसी सिचुएशन उस वक्त थी, बट अब इट इज क्वाइट कांस्टेंट, यू नो। आपको भी पता होगा, इतने साल हो जाएं तो फिर हम केयरलेस थोड़े हो जाते हैं। 15 years के बाद नॉट मच केयरलेस अबाउट चेकिंग और इंजेक्टिंग माई सेल्फ, बट इट इज लाइक बिकॉज आई एम डूइंग जॉब, तो मेरा डिस्टेंस मेरी जॉब वाला जहाँ ऑफिस है उससे ऑलमोस्ट 2 hours है। तो आई हैव टू वोक अप एवरी मॉर्निंग एट 6, around 6 a.m. And yes, first day in the morning, glass of water, nothing else. And yeah, just check my blood sugars, uh, have a light breakfast, go to office, and went back home at around 6 or 7. ऑफिस में मैं बाहर का नहीं खाती, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का लेके जाऊँ। सो यस, आके भी यही रूटीन होती है। सम आई हैव सम प्लान्स, सम हॉबीज, तो उसमें टाइम गुजर जाता है। फिर यू नो नेटफ्लिक्स, हमें उसे भी थोड़ा टाइम देना होता है। ओके। और फिर या नाइट वॉक इज कंपल्सरी फॉर मी, and that's very simple routine for me. I have I have just tight schedule of my when I have my breakfast, dinner and lunch, मेरा टाइम स्पेसिफिक होता है। जब मैं घर पे होती हूँ तो 8 to 8 मैं फॉलो कर रही होती हूँ। ऑफिस जाना हो तो जाहिर सी बात है 1 hour पीछे आ जाता है मॉर्निंग टाइम, बट बाकी टाइम सही रहते हैं। सो आई थिंक डायबिटीज ने मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट बता दिया है रूटीन को फॉलो करने में। डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बना दिया है आपको। यस यस। ओके। एंड इतना बिजी शेड्यूल होने के साथ में भी डू यू फाइंड टाइम टू वर्कआउट? आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सी टाइप की एक्सरसाइज करते हैं? या आई डू फाइंड टाइम फॉर इट। जब मैं सुबह उठती हूँ, आई मीन कि मैं कुछ मंथ्स का बीच में गैप जरूर लेती हूँ एक्सरसाइज का, जब मेरा वेट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। मतलब मुझे होता है आइडियल है, तो मैं थोड़े मंथ्स का गैप लेती हूँ और सब कुछ खाना पीना स्टार्ट कर देती हूँ, और थोड़ी सी वॉक रहती है, बाकी थोड़ी एक्सरसाइजेस कम हो जाती है। बट जैसे ही स्केल पे थोड़े से पॉइंट बढ़ते हैं और मुझे लगता है नहीं, इट इज गोइंग आउट ऑफ रेंज, तो मेरी रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती है। मुझे जब सुबह उठना होता है उसके बाद मैं 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करती हूँ, विच इज लाइक स्ट्रेचिंग, प्लांक, jumping jack, this type of exercises. And then I had very homemade breakfast like oats without sugar. And yeah, in my every meal I add some of the salad. Salad लाजमी होती है मेरे खानों में जब मैं उस रूटीन पे आती हूँ। फिर इन द इवनिंग मैं स्टिल रनिंग लाजमी करती हूँ, और नाइट वॉक। ये 3 चीजें होती हैं जो मेरी लाइफ में ऐड हो जाती हैं जब मुझे वर्कआउट करना होता है कि नहीं, अब मुझे दोबारा अपना वेट मेंटेन करना Okay. There's a question in the comments. How did your relatives react when they knew that you have diabetes? है। या सो इन फर्स्ट फ्यू इयर्स तब हमने बताया ही नहीं था कि डायबिटीज है। बहुत ही यही कंडीशन थी कि रिलेटिव्स के घर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। कि मेरा तो सबसे पहले मैं यही जो ना घर में डाल देती थी, नहीं मैं जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि वो फिर उन्हें पता चल जाएगा मेरा, क्योंकि स्टार्ट से यही मोटिव था कि सबको बता दूं, क्या फर्क पड़ेगा ना, पता Hmm. होना चाहिए। बट नहीं बताया था काफी टाइम तक, इसी तरह छुप के, वेडिंग्स पे हैं तो बस छुप के या वॉशरूम में जाके इस तरह लगा ली इंसुलिन। किसी फैमिली गैदरिंग में है तब भी छुपके से कहीं, मतलब यूज तो हम वॉशरूम वगैरह ही जाके कर सकते थे इंसुलिन लगाने के लिए। तो ऐसा टाइम था। सो उस टाइम नहीं बताया था, बट आफ्टर सम टाइम जब टाइम गुजरता गया तो उस वक्त बताना बताना नहीं स्टार्ट किया, जस्ट ओपन अप अबाउट माई सेल्फ। कि सबके सामने लगाना स्टार्ट कर दी तो सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, तो सबको तो एक एक करके पता चल गया कि अच्छा ये इसको डायबिटीज है। मतलब बट स्टिल जो रिलेटिव्स थे उन्होंने डायरेक्टली आके नहीं कहा कि अच्छा तुम्हें डायबिटीज है।
दे अडेप्ट कि अच्छा है। मतलब उन्होंने इस टाइप के कमेंट्स मुझे रिलेटिव्स की तरफ से नहीं मिले। आई डोंट नो कि अगर उन्होंने बिहाइंड माय बैक कुछ कहा हो, बट इन फ्रंट ऑफ मी नो। बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने नॉर्मलाइज कर दिया था इसको कि बस है तो है। मतलब चेकिंग लगाना वगैरह। तो क्या। ओके। एंड बिकॉज यू आर इन द टीनेज इयर्स, राइट? और वो थोड़ा सा एक रिबेलियस भी फेज होता है कि, तो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट ओवर दैट, यू नो, दैट स्टिग्मा, या फिर सोशली आपने उसको कैसे एक्सेप्ट किया, इमोशनली आपने उसको कैसे एक्सेप्ट किया? वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? Yes, it is. It was very difficult for me. 17 years, so as a girl, आपके उसी टाइम ड्रीम्स बनना स्टार्ट होते हैं फ्यूचर के, कि हम बड़े होंगे तो हमने ये करना है, हमने ये वो करूंगी। पर जब आप इस तरह डायग्नोस हो जाएं तो बहुत से लाइफ चेंजेस आते हैं आपको। ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजंस यू हैव टू मेक, जो शायद अगर मैं डायग्नोस ना होती तो मैं ना लेती। आई मीन इन चूज ऑफ माई करियर, जो मेरी एजुकेशन थी वो मैंने चेंज कर ली। लाइक क्योंकि मुझे था लाइफ इज फिनिश्ड, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अब क्या है, मैं तो टैग के साथ ही रह रही हूँ, डेट आई एम पेशेंट और आई हैव डायबिटीज। तो अब तो फायदा ही नहीं है जिंदगी का, मतलब जो जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए ना। उस टाइप का टाइम था। और द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज डेट कि उस टाइम इतना ज्यादा हम फेसबुक यूज नहीं करते थे, और इतने लोग पाकिस्तान में भी नहीं थे जिनको डायबिटीज थी। मतलब होंगे लेकिन जिस तरह मैं छुपी हुई थी वो लोग भी छुपे हुए थे। वी आर लाइक मिथिकल क्रीचर्स, लाइक वी क्रोल एट नाइट और समथिंग, बट हम लोग ओपनली सबके सामने नहीं थे। तो सो आई स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक फॉर दिस रीजन कि आसपास तो मुझे कोई नहीं मिला, बट शायद हमें वहां पे मिल जाए। तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन का टाइम था, बट आई फाउंड सम इंटरनेशनल ग्रुप्स, डायबिटीज रिलेटेड ग्रुप्स। वहां पे ज्वाइन किया, कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स बने वो इनकरेज मी, बिकॉज आई थिंक जो डायबिटीज यहाँ है उन कंट्रीज में थोड़ी डिफरेंट है। वहां पे वो इतना सोशल स्टिग्मा और प्रॉब्लम्स नहीं फेस करते। सो यस, दे गेव मी सो मच करेज टू मी। फिर भी बीच बीच में थोड़े थोड़े फेजेस आते थे जहाँ पे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजंस आते थे कि अच्छा अब ये करना है, या शादी की बात है या कुछ बात है। तो बहुत ही इस टाइप के ओवरवेलमिंग से फेजेस आते थे। बट आई बट माई आई एम ब्लेस्ड विद सो मैनी इंटरनेशनल गुड फ्रेंड्स एज वेल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट देयर माई लाइफ। And after that, in 2017, I finally met some of the people who are living with diabetes in Pakistan. And they introduced me through Meethi Zindagi. And since then, yeah, life is so simple after that, uh, because I know so many local diabetes now. So yes, I overcome with it. Uh, but the first help came from my family and then some of my international friends, कि जब मैं डायग्नोज हुई थी उसके 2-3 years बाद ही, मतलब आई बिकेम स्ट्रोंग। नो, एंड इट्स ऑल्सो गुड टू नो कि आप आपके जो ट्रबल्स थे, आपके जो फेजेस थे लाइफ के, आप उसको भी आउट ग्रो किए, यू वॉन ओवर देम, एंड नाउ यू आर हेल्पिंग सो मेनी अदर्स हु आर नियर यू, यू नो. So kudos to you for doing that. There's one more question in the chat. What do you do when you get a hypo, and what symptoms do you feel? Yeah, for hypo symptoms are like shivering. uh, First, ऐसे symptoms नहीं आते, पर अचानक the mind starts to click that something is going wrong about in my body. तो थोड़े से शिवरिंग से थोड़ी सी कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं कुछ देख रही हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स टू अ लिटिल ब्लर और कंफ्यूजन, कि भूल जाती हूँ कि हो क्या रहा है। सो या इट टेक्स मी दैट समथिंग इज रॉन्ग, देन आई चेक माई सेल्फ। और या जब हाइपो होता है तो यस, हाइपो ट्रीटमेंट। इफ यू आस्क मी इफ आई हैव एनी
hypo treatment snack, my favorite. So I know I don't have anything which can save my life at that time. Any juice box, or maybe, as you know, sometimes entire fridge could save my life. I know, I feel you. Yeah, I I know sometimes when you're hit by a hypo at night at like 2 a.m. you go to kitchen, और आपको ये भी ध्यान नहीं होता है चीज गर्म है या ठंडी है, आप बस फ्रिज खोलते हैं और दो तीन चीजें बस डालना स्टार्ट कर देते हैं. Yeah, so that's for my ओके, hypo treatment. यस. एंड अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन कैसा है आपके हिसाब से. आप जितने भी अभी लोगों को मिले हैं हु आर लिविंग विद डायबिटीज, व्हाट डू दे यूज? सबसे ज्यादा सिरिंजेस है कि पेन है कि पंप है? लोग ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्स पे, ग्लूकोमीटर पे ब्लड टेस्ट करना प्रिफर करते हैं कि नहीं करते हैं? कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द कम्युनिटी दैट यू हैव? Yeah, recently I have visited different cities in Pakistan for conducting some peer support events as well. So according to this, पहले तो सिर्फ वाइल और syringes ही थी. अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं. In most of the smaller cities, they still use the vials or the reusable pens or syringes. But in big cities, most of those people are now on pens. They are using those analog pens now. So yeah, that's a blessing now that we s- finally adapting the new regimen. But yeah, the people still prefer pens because it is easy to use, easy to carry with us, and easy to store as well. बट आपको पता है कि हम स्मॉलर सिटीज के लिए अभी, क्योंकि वहाँ पे फार्मेसीज ऐसी नहीं होती, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, तो वहाँ के कुछ लोगों को अभी भी सिरिंज और वाइल पे वाइल्स जो हैं वो यूज करनी पड़ी होती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट पेन पम्प्स, सॉरी, सो या देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट पम्प्स, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक ऐसी चीज है जो अफोर्डेबल है ही नहीं. मतलब अफोर्डेबल कर भी रही हूँ, सो रेयरली सम पीपल आर यूजिंग पम्प्स राइट नाउ, बट नो, it is unaffordable in Pakistan. Yes, it makes life easier, but for Pakistan, we are far behind for this technology right now. But still, in Pakistan, some people are using it. So yeah, for this reason, we are prefer pens. And for glucometer or CGM, because some people are still using CGM, but still, uh, the most convenient way for people or the most reliable way for people is still finger pricking or glucometer. ओके, और कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल है वहाँ पे? अगर आप ग्लूकोमीटर्स की भी बात करें या सीजीएम की भी बात करें, तो कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है? Yeah, for CGM, there are Libra 1, Libra 2, ICANN. There are also other, they introduced a new company here. I'm sorry, I don't recall its name right now. ओके. But yeah, these are right now they are using. Uh, I mean, they everyone prefer different brands because of their availability or because of their cost. So we can't say कि कौन सा बेहतर है, कौन सा लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, because it is कि personal choice होती है. सबकी, कोई एक पे ज्यादा सुटेबल होता है और एक कोई दूसरे पे होता है. उनकी अपनी होती है. अ, जो ग्लूकोमीटर में यूज हो रही है ज्यादातर, जो मैं भी यूज कर रही हूँ, वो EcoCheck कर रही हूँ, EcoCheck Instant. ओके. So EcoCheck is very commonly used CGM in Pakistan right now, but there are various others like CleverCheck or EvoCheck, like these type of brands as well. ओके. ओके, दैट्स गुड टू नो. एंड अभी पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में डायबिटीज के लिए कुछ इनिशिएटिव्स है? डज द गवर्नमेंट गिव एनी काइंड ऑफ फ्री डायबिटीज सप्लाईज या इंसुलिन या ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्स, या ऐसी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है इन द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम? Yeah, in government healthcare system and when people visit government hospitals, so they register themselves. तो government में मिलती है, but they usually give them an oral insulin types in vial or syringes type. ये चीज आपको अवेलेबल होती है हॉस्पिटल्स में.
बट वो भी कुछ सिटीज में होती है और स्मॉलर सिटीज में अवेलेबल भी है, तो जाहिर सी बात है लोगों को वहाँ पर जो इंसुलिन मिलेगी वो भी उनके लिए एक ब्लेसिंग ही होती है. But as such, if we talk about that, there is a big support for us type 1. So no, there is no such a big support. But recently, since 1 year, and in one of the province of Pakistan, government have had initiated this. There's a program where they are providing analog insulins, short-acting, long-acting insulin along with strips to the kids who are under 15. But it is only applicable, it is only right now ये सिर्फ एक ही province में हो रहा है, सब जगह पे नहीं हो रहा, but and it is only for under 15, not for everyone. ओके ओके, बट इट्स गुड टू नो दैट देयर सम स्टार्ट, कहीं से तो शुरुआत Yeah, हुई है, yes, एंड yes. जी जी. होपफुली आगे भी गवर्नमेंट कुछ बाकी प्रोविंसेस में भी एंड काफ़ी लोगों को भी उससे हेल्प हो तो अच्छा होगा. एंड वहाँ पे मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो आपको कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आप मिल सकते हैं, या ऐसे कोई फैसिलिटीज है? Yeah, so in every government hospital, there is a diabetes center. Of course, they have diabetes center. मैं अपनी डायग्नोसिस पूरे एडा में तो मैं नहीं गई, मैंने विजिट नहीं किया कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपनी उसके लिए. बट यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर मतलब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं. स्मॉलर सिटीज देयर इज द इशू, देयर इज सम इश्यूज के डॉक्टर्स की थोड़ी बहुत कभी कमी होती है, तो जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो देख रहे हूँ. बट इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स या द एंडोज आर अवेलेबल. एंड जो बिग सिटीज होती हैं वहाँ पे अगर कोई जो गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उन्होंने पूरा एक सेंटर बनाए हुए हैं जो टोटली सिर्फ डायबिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं. ओके, एंड हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन इफ यू गो टू एन एंडो और लाइक अ डायबिटोलॉजिस्ट? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? So I have different experiences in my whole life, some good experiences and some bad, because you know कि Pakistan में भी we do have very good doctors uh, with lots of knowledge about it, but I think so they have some of the doctors set the criteria because they know कि अगर जो डायबिटीज रिलेटेड पर्सन आया है उसके पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो दे डोंट प्रेफर के उनको वो बहुत ज़्यादा दें. फॉर एग्जांपल वी आर फार बिहाइंड इन कार्ब काउंटिंग थिंग्स कि वो नहीं हो पा रही यहाँ पर जो मतलब कि अगर हम एंडो के पास जाएं और वहाँ पर एक बट आई फील इज कि अगर कोई डायबिटीज सेंटर है और वहाँ पे जिस तरह डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, एक डॉक्टर है उसके बाद हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं. So between nutritionist और या जो nutritionist हैं, they are introducing this concept of carb counting, जहाँ पे वो हमें समझाएं. But as a person, when I visited my doctor, so my first doctor was very great. But again, he prescribed me the same 70/30, which I used for 3 to 4 years. Yeah, and then I faced some challenges with my doctors because आई जब मैंने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रांसफर हो गई, आई विजिटेड वन ऑफ द डॉक्टर बिटवीन, और मैं ट्रांसफर हो गई थी short and long acting regimen पर. But after some time I was facing some issue. So like after 1 year I visited some other doctor. And he again prescribed me कि आप you don't need to use ना daily 3 to 4 times injections. You have to come back to 70/30 कि आप दोबारा ये यूज करना स्टार्ट कर दें. इट इज सो हार्ड कि आप छोटे से हैं और आप इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं. आई वाज टू शॉक्ड. No, you are endocrinologist. Don't do this to me because uh, because it पहले ही बहुत मुश्किल से मैं इस वाले रेजिमेंट पे आई हूँ. I was doing well. Injecting myself is not my issue right now because I think you better Are know you this क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा साल हो चुके हैं
कि आई डोंट थिंक कि अब हमें इंजेक्शन अगर कोई 5 से 6 बार भी करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, वी जस्ट हैव टू ओपन द कैप एंड या क्लिक इट। यस। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी राइट नाउ कि अब अगर मुझे कोई कहे कि नहीं आप एक इंस्टेंट 2 दफा लगाएं, आप 5 दफा क्यों लगा रही हैं, 3 दफा क्यों लगा रही हैं, आई एम जस्ट लाइक आई एम ओके विद दैट, इट्स हाँ, ओके फाइन। Yeah, I'm adept with it. Yeah, again, recently I visited our doctor and he was asking me, और 15 years में आपको पता होता है आप खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, and he was asking me the things and I was telling him, मैं बहुत ही एडवांस टाइप पे बोल रही थी, बिकॉज एज यू नो कि मुझे बहुत ही शौक है डिफरेंट टाइप्स के वेबिनार्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इन चीज़ों को वो करने का। एंड डॉक्टर वाज saying समथिंग और मैं उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट करके मैं बता रही थी, एंड एट द एंड डॉक्टर वाज लाइक आप आई क्यों है मेरे पास? आई नो। I was saying yeah. और कॉस्ट वाइज हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मैनेज? अगर हम महीने का खर्चा पकड़े तो सेंसर को छोड़ के सिर्फ इंसुलिन और टेस्ट स्ट्रिप्स एंड सिरिंजेस का कॉस्ट पकड़ के या फिर पेन नीडल्स का कॉस्ट पकड़ के महीने का खर्चा लगभग कितना आता है? ओके, अगर तो हम अगर बात करें कि स्ट्रिप्स भी हम बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्ट होके यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर यूज 2 टाइम्स अ डे ना, 2 टाइम्स प्रिक करते हैं, और सम फॉर सेविंग मनी 1 टाइम ही प्रिक कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। तो अगर इस लिहाज से देखें, अगर हमने मतलब 2 टाइम्स अ डे भी अगर वो करना है प्रेफ, तो मंथली कॉस्ट अराउंड हमारी 15,000 आ रही होती है, इंक्लूडिंग पेन्स एंड द स्ट्रिप्स, 15,000 विदाउट एनी CGM. It includes the long acting, the short acting pen. I'm talking about the pen right now, not about the vials, because the vial use करते हैं या NR की थोड़ी कम है, वो थोड़ी कम है, तो but अगर अपना यूज करूँ तो या 15,000, और अगर मुझे स्टेप्स ज्यादा चाहिए हैं यूज करने के लिए, तो या यू कैन एड 35,000 मोर टू इट। ओके। एंड जब आपका शुगर हाई होता है तो आप करेक्शन डोज लेते हैं? या ऑफ कोर्स। ओके। एंड या करेक्शन डोज का जानकारी आप देते हैं आपके कम्युनिटी में सबको? मतलब क्योंकि काफी बार पीपल आर आल्सो लाइक कि हमको करेक्शन डोज नहीं लेना, हम दिन में जो 3 बार इंजेक्शन ले रहे हैं हम वही लेंगे, हम करेक्ट नहीं करेंगे। ये भी काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं। yeah, yes, actually it is at some sorts, Neha, it is very dangerous as well, because अगर हम बात करें तो हम एज एन एजुकेटर भी बात कर रहे होते हैं, और हम एज अ डायबिटी भी बात कर रहे होते हैं, हम एज अ कम्युनिटी भी बात कर रहे होते हैं। फॉर मी, व्हाई इट इज डेंजरस फॉर सम पीपल टू टेक एक्स्ट्रा या करेक्शन डोज, बिकॉज उनको अभी तक इतना नॉलेज नहीं होता, दे डोंट नो अबाउट देयर ICR, they don't know about ISF, about insulin sensitivity factor, insulin to carb ratio, anything like that. तो वो चल रहे होते हैं रेजिमेंट जो बट डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड देम, लाइक 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स आपने ब्रेकफास्ट में लेनी है, 10 आपने फॉर द लंच, 10 फॉर द डिनर, सो दे वर्किंग लाइक दैट। तो अगर बीच में थोड़ी भी करेक्शन, तो लोग उसी को ले रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये भी हम बहुत ले रहे हैं, हम इससे आगे पीछे नहीं कर सकते ना, क्योंकि डॉक्टर्स के बगैर हम कर ही नहीं सकते, वो उसके बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। बट होता क्या है कि बिकॉज दे वर लैकिंग some of the key aspects, some of the key things or educational stuff that they need to know, तो वो करते क्या है, करेक्शन डोज लेनी है तो वो एक साथ, क्योंकि उन्हें ICR नहीं पता, उन्हें ISF नहीं पता, तो वो बहुत ज्यादा एक साथ ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक साथ ही लैंड कर रहे होते हैं हाइपो पे, विच इज वेरी हार्ड। So yes, it is a very big problem here because you are handling with community too. So as you know कि आपके पास भी ये क्वेश्चन आते होंगे कि प्लीज टेल मी हाउ मेनी यूनिट्स आई कैन टेक ना, कि मेरी पर इतनी शुगर हो गई है, मैं कितने यूनिट्स लूँ, और
we can guide them, but the biggest challenge I am facing is कि जब तक मुझे किसी का ICR ISF नहीं पता हो, I can guide them. हम गाइड नहीं कर सकते, वो खुद भी नहीं कर सकते. सो इट्स बेटर कि मुझे यही होता है कि डॉक्टर्स की, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उसमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स ऐड हों, एजुकेशनल स्टफ, जहाँ से उनको ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के पास से भी मिल रही हो. ऑफ कोर्स वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू एजुकेट देम कि they can treat their hypos and their hypers in a very manageable way. राइट. एंड पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज कवर करते हैं क्या टाइप 1 डायबिटीज को? एनी आइडिया? No, there is no such insurance policies here available. So we are all over. We are doing everything out of our pocket, even for a Lancet. It is a very great thing कि हम Lancet काफी टाइम बाद change करते हैं. राइट. So it's a question from me to you. स्नेहल कितने टाइम बाद Lancet यूज करते? वो ऐसे हम ना, मतलब हमारे कम्युनिटी में ऐसा जनवरी मंथ में एक एनुअल रिमाइंडर डालते हैं, बट दैट्स अ जोक. बट अभी मैं, मतलब लाइक काफी अभी 2-3 साल से आई बिकम मोर लाइक ऑर्गेनाइज्ड. मैं अभी एवरी संडे को मेरी सारी नीडल्स चेंज करती हूँ. मतलब पहले तो मैं, बिकॉज आई एम स्टिल यूजिंग अ पेन फॉर माई लैंटिस एंड वायल और सिरिंज फॉर माई बोलस. तो कभी कभार ना, क्योंकि मैं अकेली ले रही हूँ पेन, वो सिरिंज मैं अकेले यूज कर रही हूँ, और पेन का आदत हो गया है. तो कब तक मैं कभी कभार महीनों महीनों तक उसको चेंज नहीं करती थी, जब तक उसके ऊपर का सब लिखा हुआ दैट लाइंस जो हट नहीं जाता है, तब अभी तो चेंज करना पड़ेगा. बट नाउ सिंस आई थिंक लास्ट 2 years आई बिकम मोर ऑर्गेनाइज. मैं एवरी संडे को अपना सब चेंज कर लेती हूँ. जितने भी पेन नीडल्स है, जितने भी सिरिंजेस है, वो सारे मैं चेंज करती हूँ. एंड लैंसेट्स अभी भी मेरा थोड़ा आई चेंज इट once a few months, like 3-4 महीने में एक बार. बट आई थिंक सबका एकदम अलग अलग ही है. मतलब आप जितना ज्यादा यूज करोगे, आई थिंक इट्स बेटर टू चेंज इट ऑफन. क्योंकि अभी तो मैं सीजीएम पे हूँ, तो मैं इतना ग्लूकोमीटर यूज नहीं करती हूँ. दिन में शायद 1 या 2 बार ही यूज होता है. तो प्रॉब्ली once a month I would change my lancet, but it's very difficult लोगों को lancet change करवाना. Yeah, that's the same issue with me कि पेन से भी करना हो तो बस हम कर रहे होते हैं तो माइंड पे ही नहीं रहता कि ये जो पेन की नीडल है इसको यूज करना होता है. बट या आई एम ट्राइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू. तो मेरा ये होता है कि मतलब वन डे में, आफ्टर वन डे में हम नीडल वो कर दें, क्योंकि 3 टाइम्स तो लगाना ही होता है. लॉन्ग एक्टिंग की तो फिर भी काफी टाइम तक नहीं याद रहता कि हमने चेक कर दें तो चेंज कर दें. And Lancet too, I don't remember I last changed. So now today is the reminder, आज change कर लो. Yeah. Yeah, sure. Okay. I think moving on to a few challenges जो हम socially देखते हैं, I think they are pretty common in India and Pakistan and other Asian countries जो हमारे हैं, जो थोड़े social challenges है. जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में पेरेंट्स को भी हिचकिचाहट होती है, हम नेबर्स को नहीं बताएंगे या फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को नहीं बताएंगे. एंड अभी पाकिस्तान में कैसा सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज? एंड जैसे आप स्कूल में जाते हैं, चैलेंजेस आपने देखे हैं क्या आपके कम्युनिटी में? Yeah, so the challenges are still here. Still, I think कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ गए हैं, पर जो स्टिग्मास है उसको अभी तक हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. There are several barriers here. When I talk about stigma, I always says there are two types of things, na? Social stigma or social anxiety. These are two different things but interconnected, right? So some of the people with diabetes are facing social stigma, and some of them, because of some people you facing this, the others started to feel social anxiety. Like some are still afraid to inject themselves in front of others. They are still afraid to go out with their friends. वो अभी भी किसी वेडिंग सेरेमनी पर जाने से डरते हैं
कि हम कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, स्कूल में छुपा रहे होते हैं, बच्चों से नहीं बताते कि हमें है। तो ये सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सोशल स्टिग्मा का शिकार होते हैं। बट सोशल एंजाइटी, जब कुछ लोग हैं वो एक्सपीरियंसेस सुनते हैं दूसरों के कि अच्छा वो ये फील कर रहा था, तो चाहे उसके साथ वो हुआ हो या ना हुआ हो, उसमें सोशल एंजाइटी आ जाती है और उसके बाद वो अवॉइड ही करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं मैंने अभी किया भी नहीं है, पर मैं करूंगा भी नहीं, ये ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। सो आई वाज I did teaching as well for about 6 to 7 years. So I came across in each of my section there was one of the kid with type 1 diabetes. तो बहुत मुश्किल से पता चलता था आपको कि उनको टाइप 1 डायबिटीज है, वरना वो नहीं बताते थे। और ना बताने का रीजन यही था कि अगर वो बता देंगे तो माइट बी पॉसिबल कि अगर गेम्स पीरियड होगा तो टीचर उनको रोक देंगी कि नहीं, तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारी लो हो जाएगी, तुम नहीं खेल सकते। तो वो इस बारे में नहीं बताते थे। वो इंसुलिन नहीं लाते थे कि नहीं हमने नहीं लगानी, सुबह की लगा कर आए हुए हैं, बीच में लंच कर दिया, इस टाइप का कर दिया, लेकिन नहीं बताया। तो स्कूल में भी था। बट आई थिंक कि सोशल एंजाइटी भी हम लोगों को बहुत हो गई है, क्योंकि हमने माइंडसेट बना लिया है कि ये होगा हमारे साथ अगर हम ये बता देंगे। तो कुछ लोग ओपन अप ही नहीं होते। सोशल स्टिग्मा तो है, बट वो सोशल स्टिग्मा तभी खत्म होगा जब हम ओपन अप होंगे। पर कुछ लोग एंजाइटी की वजह से ओपन अप ही नहीं हो पा रहे। पेरेंट्स नहीं ओपन अप हो पाते, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि किसी को तुमने नहीं बताना। तो काफी पेरेंट्स जब मुझसे बात होती है तो मेरी यही बात होती है कि सबसे पहले आप एक लेटर बनवाएं अपने डॉक्टर से, स्कूल जाएं, उसकी टीचर को दें, उसको गाइड करें, उसकी डायरी पे लिख दें। उसको कहें कि वो स्कूल में बताए, मतलब क्लोज फ्रेंड्स को बताए कि दे आर लिविंग विद डायबिटीज। तो यही एक स्टेप है जहाँ से हम सोशल स्टिग्मा जो है वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन हम ही स्टार्ट करेंगे तो वो आगे जाएगी। So True. when I was diagnosed, when I was in my university days, तो मैंने भी नहीं बताया हुआ था before I landed in the hospital with a severe hypoglycemia, because उस टाइम मैं 70/30 पे थी। वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, और कि जब 70/30 लगाओ तो वो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में रहता है, वो खत्म नहीं हो रहा होता। जिसकी वजह से मुझे severe hypo हुआ था। I landed in the hospital, and after that I have to open up about it with some of my teachers, जिन्हें बताना पड़ा। मुझे वहां पे लेटर सबमिट करवाने पड़े, क्योंकि ऐसी जब यूनिवर्सिटीज में हो तो आपकी असाइनमेंट डेट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, जो आप नहीं कर पाते। और वो अगर आपने उन्हें इन्फॉर्म ना किया हो तो वो जाहिर सी बात है आपको बहुत लॉस होगा। तो मैंने वहां पे अपनी फ्रेंड्स को सबको बताना स्टार्ट किया। बट अगेन सोशल स्टिग्मा बहुत है यहाँ पर। दे स्टिल थिंग्स अबाउट, अगर हम गर्ल्स की बात ही करें, बॉयज की भी वही है। शादी में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि यू हैव डायबिटीज, अगर तुम्हें है तो जाहिर सी बात है बच्चों में आ जाएगी। इस टाइप की बातें बहुत होती हैं, इसलिए वो शादी ही नहीं करते। लड़कियों की तो खास तौर पे, कि लड़कियों को तो उन्होंने यही टैग मिल जाता है कि अगर इसे डायबिटीज है तो बच्चों में आ जाएगी। और या तो ये जिंदगी के वो काम ही नहीं कर पाएगी या बीमार पड़ी रहेगी। तो इस टाइप के बहुत से इश्यूज हैं, और बहुत ज्यादा वर्किंग करनी है अभी हमें इस पर। राइट। आई थिंक ये थोड़ी कॉमन चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ कि आई थिंक इंडिया में भी ये काफी कॉमन है कि ग्रोइंग अप हम पेरेंट्स भी काफी बच्चों को बोलते हैं कि बताओ मत किसी को, एंड देन रिलेटिव्स को मत बताओ या फ्रेंड्स को मत बताओ या स्कूल में मत बताओ। बट व्हाट यू आल्सो हाईलाइटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास के लोगों को पता हो, बिकॉज अगर कभी भी वर्स्ट के सिनारियो हाइपो आ जाए, इट्स वेरी इजी टू क्योर एन हाइपो, कि बस या शक्कर लगानी है। बट अगर किसी को जी, पता ही नहीं है कि आपको शक्कर देना है, तो शक्कर आसपास होके भी इट्स नो यूज, राइट? एंड इट कैन बी यस, सॉल्व इजीली। बट हम बिना बताए किसी को, या किसी को अगर पता ही नहीं हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, देन इट कैन बिकम वेरी डेंजरस, लाइक यू सेड, So one of the comments said that thanks for the insight. I think what you talked about, social stigma and social anxiety, that is quite relevant. हम भी काफी बार ये नोटिस करते हैं कि लोग बोलना भी चाहते हैं बट नहीं बोल पाते हैं, लाइक इन टर्म्स कि ये मेरे साथ भी हो जाएगा ये सोच के. There's one more question on how do you manage your burnout?
बिकॉज अभी तो 17 साल हो गए हैं, एंड फॉर मी ऑल्सो 24 years, वेरी लॉन्ग टाइम विद टाइप 1, एंड तो बर्नआउट होना तो बहुत कॉमन सी चीज है। तो आप कैसे डील करते हैं बर्नआउट के साथ? या काफी टाइम जब बर्नआउट आती हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही बीच में मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू थिंक कि कि इस टाइप के आपको ख्याल आने लग जाते हैं कि बस अब मैं थक गई हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम माई डायबिटीज एनी मोर एंड आई एम नॉट टायर्ड फ्रॉम इट, बट आपको थोड़ा ये फील होने लग जाता है दैट आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग इज वो ना आप पे बर्डन लगना शुरू हो जाता है। सो बट आई डू इज कि अगर मैं अपने बर्नआउट के टाइम पे भी बाहर जाऊंगी तो वो मेरा बर्नआउट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वट टाइप ऑफ पर्सन आई है मैं उस टाइप की पर्सन हूँ कि अगर कोई वीकेंड आया है तो मुझे घर से बाहर निकलना नहीं पसंद। मैं घर पे ही रहती हूँ, चाहे कोई फैमिली गैदरिंग है, चाहे फैमिली ने कोई दावत दी है, आई डोंट गो। नो, संडे और सैटरडे मुझे घर पे रहना है। तो आई डोंट नो आपने कभी वो मीम देखा हो, बहुत ही ज्यादा फेमस मीम है कि what you do on your weekends, so the other person say I just move enough so no one can think that I am dead. So that is my situation, that is totally for me. Okay. So in my burnout phase I just isolate myself. मैं कोई सीजन देख लेती हूँ। सीजन में आजकल मैं देख रही हूँ, दैट वन इज हाउ आई मेट योर मदर। बिफोर डेट मेरे पास अपने बर्नआउट को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स था, एंड नाउ आई हाँ। शिफ्टेड टू दिस सीजन। तो मेरा यही होता है, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ, और आई जस्ट रिकॉल माई थिंग्स कि अच्छा क्या था, अपना माइंड दूसरी तरफ लगाती हूँ। आई ट्राई टू से इन माई माइंड अगेन एंड अगेन नाउ आई कैन डू दिस। और या आई एम डेप्थ इनफ कि आफ्टर सम टाइम वो जो बर्न आउट होता है वो फेज खुद ही खत्म हो जाता है। और या दैट्स अ डिफरेंट वे। क्योंकि जब मुझे बर्नआउट होता है, आई लाइक टू रीच आउट टू माई कम्युनिटी, मतलब भले ही मैं मिलूं नहीं लोगों से, पर जैसे हमारे फेसबुक ग्रुप पे जो लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस डाले हैं, सो दैट मेक्स मी फील दैट आई एम नॉट अलोन। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, टू फील दैट आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज। एंड हमारे जो मंथली मीटअप्स वगैरह होते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन आई मीट अदर्स एंड आई सी एंड लिसन टू देयर स्टोरीज, आई थिंक दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट। बट योर स्टोरी इज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी, कि हर एक का थॉट्स एंड ओपिनियंस कितने डिफर करते हैं टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। डायबिटीज बर्नआउट मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, बट हम दोनों के तरीके जो है उसको सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट है। Yeah, ओके। I do share it with my community as well, but on my personal page as well कि मुझे हो रहा है burnout. I don't know why it is happening. It is not because of diabetes, but it is happening. So maybe the good vibes are okay. मेरी अक्सर पोस्ट ऐसी जाती हैं मेरी अपनी पर्सनल उस पे भी, and do people reach out and I am like no, I am not going to do anything bad with myself. I am not. Yeah, no, I know. I I'm remember I strong see your enough. post. Yeah. I see your posts on Facebook, and I'm like, okay, she's going through a burnout. Yeah, and after 2 days, I'm out of my shell. Yeah, nothing happened. I'm okay. Okay, good to know. And I think coming to everyone's favorite topic, food. So what are your favorite foods? And अगर आप कुछ हाई कार्ब खा रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? Food. If I talk about myself, तो मैं बहुत ही picky eater हूँ. I don't know if you recall जब मैं सिंगापुर आई थी, it was very hard for me to adapt the food. बहुत ही मुश्किल मेरे लिए हो रहा था ना, क्यों कि आफ्टर ईच कॉन्फ्रेंस कि जितने खाने होते थे और मैं उसमें से नहीं खा पाती थी। बहुत ही रेयरली मैं कुछ लेके उसको टेस्ट कर पाती थी। तो बहुत ही पिकी ईटर हूँ घर पे भी, बट मैं नॉर्मल घर की जो भी चीज़ अब होती है खाना खा लेती हूँ। कार्ब रिलेटेड बिकॉज मैं पोर्शन वाइज चलती हूँ।
बिकॉज आई थिंक सो आई हैव मेंशन बिफोर कि जब मैं खाना खा रही होती हूँ, मैं जो मील प्लान है वो इस तरह चलता है कि जब मैं बैठी हूँ, मैंने सबसे पहले 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेना होता है, एंड आफ्टर दैट हाफ ऑफ माई पोर्शन, अगर एक रोटी हमने चपाती खानी है तो मैं उसको हाफ लेती हूँ, बट हाफ नहीं करती उसको। मैं उसका जो स्टार्ट में हम लेते हैं विदाउट कुक्ड उसको हाफ कर लेती हूँ, ताकि जो मेरी रोटी है वो पूरी ही हो, बट उसके कार्ब्स कम हो। और उसके बाद मेरा जो वो हाफ पोर्शन है वो मैं सैलेड के साथ पूरा कर लेती हूँ। सो मेरी सिंपल डाइट प्लान ये चल रहा होता है, तो that's how I control my carb portion. But no, I'm not a very good person. I do love pizza. I do love pasta. I do love spaghetti, this type of carb things. Yeah, जब उसको करती है, so I try to split my bolus, half first में और half जब पता चले कि नहीं I'm going up, तो half उसके बाद. So I try to manage myself like that. एंड एज आई लव बेकिंग एज वेल, तो मैं केक्स बहुत बनाती हूँ। पहले बना रही थी, अब तो इतना टाइम नहीं मिल रहा होता, बट खुद नहीं खाती थी मैं। मैं केक बनाती थी तो घर वाले खाते थे, और खुद नहीं। पर या मैं साथ में डोनट्स बनाती हूँ जो मैं खुद खाती हूँ, और मैं पिज्जा वगैरह बना लेती हूँ खुद खाने के लिए। So yeah, but no, if you think I'm a very good in keeping my diabetes in balance, then no, I'm not. My diabetes is is a teenager, which is very hard to handle, like Yeah, I teenage think child. uh, So फूड yeah, इज वेरी ट्रिकी टॉपिक नो, बिकॉज हमको खाने का मन भी बहुत कुछ करता है। आप बाहर से भी कुछ कुछ मंगा सकते हो, आप घर में भी कुछ बना सकते हो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी हर एक का फूड प्रेफरेंस कैसा है एंड हाउ दे मैनेज, यू नो। सो इट्स ओके टू हैव अ चीट मील वंस इन अ व्हाइल, इट्स ओके टू yeah, ईट, यू नो, पिज्जा खा रहे हो या बर्गर खा रहे हो, इट्स ओके। बट देन बाकी के दिन, जैसे आपने कहा कि योर डाइट इज प्रीटी मच स्टेबल, एंड बाकी के दिन आप एकदम पोर्शन कंट्रोल एंड जो आपका स्टेबल डाइट है, बैलेंस्ड मील है, वो आप खाते हो। तो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन, राइट? yeah, yeah. ओके। That's perfectly fine in that sense. ओके, एंड आर देयर एनी टिप्स और ट्रिक्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? अपने इतने टाइम डायबिटीज के साथ आप रहे हो, तो कोई टिप्स और ट्रिक्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ओके, अबाउट मैनेजिंग डायबिटीज। ओके, जब स्टार्ट के ईयर्स होते हैं तब तो ट्रिक्स आपको तभी वैसे काम आएंगे, सो डोंट पैनिक फॉर एनीथिंग, चाहे आपको हाइपर हो रहा हो या हाइपो हो रहा हो, बिकॉज आई फील कि हाइपो में तो चलो आपको स्टेंट कुछ लेना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है अपने सिम्टम्स के लिए। आपको इतनी चेकिंग रखनी चाहिए कि आपके लेवल्स इतने कम ना चले जाएं कि आपको हाइपो अनअवेयरनेस हो जाए, बिकॉज वेयर आई एम लिविंग आई हैव नोटिस्ड कि लोग इस बात की तरफ लग जाती हैं that we have to maintain our HbA1c. they think कि HbA1c 6 रखना है या 6 के अंडर रखना है, that is achievement. For me it is not an achievement. If you are facing so many hypos, it is not an achievement, it is a life threatening issue for you. तो मैंने ये बहुत चीज नोट की कि लोगों को बस होता था मेरी 6 है, वी कैन ब्रैग कि हमारी 6 आ गई है, तो हम इतने हाइपोस को कर दें। बट डेट वाज रोंग फॉर माय साइड। तो मेरी तो टिप यही है दैट यू हैव टू चेक योर लेवल्स। आपको इतना लो जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब फील हो दैट यू आर गोइंग बिलो 80 70, यू हैव टू हैव समथिंग, ताकि आपको कभी हाइपो अनअवेयरनेस ना हो। हाँ, हाइपर के लिए यू हैव योर इंसुलिन, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन कि 140 तक हो, आफ्टर 2 आवर्स 140 150 इवन 160 आर फाइन। 200 पर भी हम जाते हैं जब हम सीजीएम पहनते हैं, देन वी विल नो कि हम कितनी बार 200 को टच कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे हम खाते हैं वो टच होता ही है। तो आपने हाइपर में भी होता ये है कि लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर में पैनिक स्टार्ट हो जाते हैं, पैनिक होना, ठीक है। दैट नो, हमारी वो हाइपर हो गई है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये हो गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी हाइपो से ज्यादा हाइपर की टेंशन होती है, बट स्टिल आई डोंट पैनिक।
आप करेक्शन डोज ले लो, बट करेक्शन डोज के बाद भी यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और उसके बाद भी आप थोड़ी देर वेट करो। लोग होते हैं 2 यूनिट लिए करेक्शन डोज, क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि कितनी करेक्शन लेनी है। और कभी कभार ये होता है कि आपको पता है जो हाइपर होता है वो इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं, जिद्दी होता है कि चाहे आप ले भी लो उतने यूनिट, वो ड्रॉप नहीं होता है, वो टाइम ले रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं, पर लगाते जाते हैं 5 मिनट्स सोचते हैं नहीं हमारी तो अभी भी हाइपर है, फिर ले लिए। अब होता क्या है, दे आर गोइंग टू स्ट्राइक एट वंस, और उसके बाद वो डायरेक्ट आपको हाइपोफेज में ले जाता है। हम्म, सो डू एवरीथिंग इन बैलेंस। जब आपको टाइप 1 डायबिटीज हो गई, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अगर हम कहें कि रोलर कोस्टर बिल्कुल सीधी जा रही हो, तो यू नो कि इसमें कोई मजा भी नहीं है। रोलर कोस्टर में तभी होता है जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज व्हेन टू स्क्रीम एंड व्हेन टू क्लोज योर आईज। सो जब भी आपने रोलर कोस्टर राइड करनी है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ कि आप, लाइक व्हेन वी ट्रैवलिंग, तो मेरा हमेशा ये होता है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपके पास लाइक आई सा सम पीपल कि अगर वो घर से बाहर निकले, मेरा होता है मैं घर से बाहर निकली हूँ इवन फॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर, तो मेरे पास मेरी इंसुलिन, एक ग्लूकोज बॉक्स, मेरा ग्लूकोमीटर, ये सारी चीजें ना लाजमी होती है। बट ऐसा कि पीपल लोग काफी देर के लिए बाहर निकलते हैं, बट ये चीजें नहीं लेके जाते। सो it is also a tip from me: whenever you are going outside your home, even it is for a very short time, even it is for the 30 minutes, but you don't know the circumstances, कभी भी circumstances change हो सकती हैं, कभी भी आपको कहीं पे लेट रुकना हो सकता है। तो हमेशा अपने बैग में जूस बॉक्स, आपकी इंसुलिन आपके पास होनी चाहिए, आपका ग्लूकोमीटर आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि आप किस कहीं पर भी हो आप अपनी डायबिटीज से फाइट कर सको। absolutely. I think some great tips which were shared. Thank you, Shobia. And before we are almost at the end of our discussion, and we had a pretty lovely discussion on talking and laughing a Oh, lot also. it is it is already going to end. I know. But before we let you go, we usually do a fun rapid fire round. So are you ready? Yeah, Okay. Tea or coffee? coffee, Okay. especially Mountain. when I made it for myself. That's nice. Beaches or mountains? Mountains. One superpower you wish you had. Yeah, already have a superpower. I can manage one of my body organ by myself. But I want telepathy. Okay. What's your favorite dish? I don't have a preferable favorite dish, but uh, मेरी ये जो डिश है ये हर बार चेंज होती रहती है, सो आई अच्छा, कांट अभी से द फिलहाल के लिए वन क्या थिंग। so right now pasta, you can say. है? Okay, okay. And who's your favorite cartoon character? Oh, my favorite cartoon character, uh it's Sasuke from Naruto. Oh, I didn't know you're an anime fan. That's good to know. Okay. What's your favorite hypo treat? I think we covered that. आपके पास जो भी है आसपास you take that, right? Yeah. What's your favorite ice cream flavor? My favorite ice cream flavor is coconut. I love coconut in everything. Nice. What's your favorite emoji? Ah, straight face. I don't want people to know how I'm feeling. Okay. What's your favorite color? My favorite color, the ocean, very natural sea green color. आई डोंट नो, जब वो उसे किसी ड्रेस वगैरह में कन्वर्ट करते हैं तो वो कलर नहीं रहता, बट आई लव द नेचुरल सी ग्रीन कलर। Okay. One place you want to visit? ओह,
Switzerland. Oh, that's nice. Okay, and almost at the end of it, what's your favorite cuisine? Ah, my favorite cuisine, Chinese, I guess. Okay. Okay, that's good to know. And we are right on time. And thank you so much, Shovia, for joining us on a Sunday evening and sharing all your insights and the current situation and how you manage in Pakistan. Thank you so much. Thank you so much for having me today. And thank you, everyone. Thank you to all the audience who have joined us. And we will see you again on next Sunday, same time. See you next time. Bye bye.